السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا ٹاپک ہے لیو لائک این ایگل، ایک عقاب کی طرح زندگی گزارو۔ صدیوں سے عقاب ایک سمبولیکل پرندہ ہے۔ ہی از اے سمبل آف بیوٹی، ہی از اے سمبل آف کریج، ہی از سمبل آف لائلٹی، ہی از سمبل آف رائلٹی، اینڈ ہی از اے سمبل آف سنسیریٹی، and he is a symbol of power, he is a symbol of determination, and he is a symbol of speed۔ عقاب کے اندر بہت ساری اس طرح کی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو صدیوں سے سمبل مانا گیا ہے، علامت مانی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں، he flies very high، کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اتنا اونچا اڑ سکتا ہے، یہ 10,000 فیٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے، اور یہ وہاں پہ اڑتے ہوئے فیلڈ آف ویژن ہے جس میں یہ دیکھ سکتا ہے، وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ یہ اوپر سے اڑتے ہوئے زمین پہ بھاگتے ہوئے ایک ریبٹ کو، ایک خرگوش کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ اوپر اڑتا ہوا اگر ہوا میں کوئی اور عقاب ہے تو اس کو 50 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ دیکھ سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ کہ انسان کو ہمیشہ اپنے خوابوں کو بڑے سے بڑا رکھنا چاہیے، اپنی ڈیزائرز ہائی رکھنی چاہیے، اپنے ڈریمز بلند رکھنے چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو اپنی سوچوں کو پست نہیں رکھنا چاہیے، چھوٹی سوچیں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اس کی ویژن اتنی تیز ہوتی ہے، اس کی آنکھ کا سائز انسان جتنا ہے، اور اس کی جو ویژن ہے that is 5 times more than the human۔ یہ دور دور تک اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ فوکس کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے۔ یہ اوپر اڑتا ہوا جس تیزی سے اڑتا ہے، جتنی اونچائی پہ اڑتا ہے، اونچائی پہ اڑ کر بھی یہ اپنے شکار کے اوپر اپنی نظروں کو فوکس کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور جب تک اپنے شکار کو یہ دبوچ نہیں لیتا۔ لیسن کیا ہے ہمارے لیے؟ لیسن یہ ہے کہ when you choose some target، جب آپ کوئی اپنا گول فکس کرتے ہیں تو پھر اس گول سے، اس منزل سے، اس مقصد سے آپ کو نظریں ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ The moment you will deviate your eye from the target، it can happen that the target can go away، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ اوپر اڑتا ہوا یہ واحد پرندہ ہے جو 10,000 فیٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، اور جب طوفان آتے ہیں، جب سٹورم آتا ہے، ہوا کا طوفان، ہوائی طوفان، بارش ہوتی ہے، جب تمام پرندے جو ہے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں خوف کے مارے، تو یہ اڑتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، ہواؤں سے کھیلتا ہے، اٹکیریاں کرتا ہے، اور ہوا کے اوپر یہ سور کرتا ہے، اپنے جو پر پھیلا دیتا ہے، اور طوفان اس کو خود ہی خود اوپر اٹھاتا چلے جاتا ہے، اور یہ کلاؤڈز کے اوپر چلا جاتا ہے، طوفان کے اوپر چلا جاتا ہے، اور طوفان اس کے نیچے ہوتا ہے، کلاؤڈز جو بادل ہوتے ہیں اس کے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ اوپر پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ کہ یہ جو طوفان ہوتے ہیں ان کو آپ نے مصیبت کے طور پہ نہیں لینا ہوتا۔ یہ طوفان کہتے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ یہ جو مصائب آتے ہیں یہ زندگی میں آپ کو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیر از اے اپرچونٹی ان دیٹ۔ ہر مشکل کے اندر ایک موقع ہوتا ہے، آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں۔ موقع آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک مصیبت کے اندر کوئی نہ کوئی موقع چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کا ارتکاز پورا ہے، تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مصائب جو ہیں جب بھی آتے ہیں وہ ساتھ اپرچونٹی لے کے آتے ہیں، اور یہ آپ عقاب کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھیلتا ہے، وہ مسائل سے کھیلتا ہے، وہ پرابلم کے ساتھ کھیلتا ہے، طوفانوں سے کھیلتا ہے، آنکھیں نہیں بند کرتا، انجوائے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اوپر اڑتا ہوا اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے، اور ٹارگٹ کے اوپر دیکھنے کے بعد وہ اس کے اوپر پہلے اوپر جاتا ہے، اوپر جانے کے بعد وہ اپنا مومنٹم قائم کرتا ہے۔ مومنٹم، واٹ از دا مومنٹم؟ مومنٹم از دا پروڈکٹ آف دا ویلاسٹی اینڈ ماس۔
मास और वेलोसिटी, उसका ऊपर उड़ के उसने पूरी स्पीड के साथ अपनी पूरी स्पीड बनाता है, और अपने बॉडी का जो मास है उसके साथ उसका जो मोमेंटम है वो हजारों गुना ज़्यादा हो जाता है जब वो स्पीड से आता है, और फिर वो उस स्पीड के साथ अपनी स्पीड को बिल्ड करके वो उसके ऊपर झपटता है, और वो ये नहीं देखता कि ये कितना ताकतवर है, वो ये मेरे से कितना बड़ा है। फेयरलेस फाइटर, जो खौफ ही नहीं है, उससे जसामत में 10 गुना बड़ा है, उसको उल्टा के फेंक देता है, फिर अगर वो बच गया दोबारा उसके ऊपर हमला करता है। तो क्या इसे हम क्या कि हमें जब मुसाइब का मुकाबला करना है, हमने ये नहीं देखना कि मुसीबत छोटी है बड़ी है। जब हमने किसी का मुकाबला करना है, हमने ये नहीं देखना है वो तगड़ा है या वो कमजोर है। हमने जब फाइट करनी है तो फाइट देनी है, और फिर किया फाइट टू द लास्ट, हमने आखिर तक लड़ना है। ये बात नहीं है कि उसको छोड़ देना है। और इफ यू विल फाइट टू द लास्ट, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। ये ईगल सिखाता है आपको कि फाइट टू द लास्ट एंड मूव विद द ग्रेट स्पीड। फिर उकाब की जिंदगी में कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही फ्लाइज अलोन, वो अकेला उड़ता है। वो कहता है मेरी तरह का परिंदा ही कोई नहीं है। सॉलिटरी बर्ड्स, ही इज द किंग ऑफ द स्काई, ही इज द किंग ऑफ द फ्लाइट। वो कहता है मैं अकेला आसमानों का बादशाह हूं, फ्लाइट का बादशाह हूं, परवाज का बादशाह हूं। इससे हम क्या सबक लेते हैं कि देखें, आपको अपने ही तरह के लोगों में बैठना चाहिए, आपको अपनी ही तरह के सोच के लोगों में बैठना चाहिए। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो आपकी सोबत होती है उसी से आप पहचाने जाते हैं। उकाब की अगर आपके अंदर खसलतें होंगी, आदतें होंगी, तो आप पहचाने जाएंगे। अगर आप बहादुर हैं, आप तगड़े हैं, आप जुर्रतमंद हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, मुस्बत सोच है, तो आप पहचाने जाएंगे। सो उकाब से आप ये सबक हासिल कर सकते हैं कि जिस तरह की इंसान की सोच होती है वो उसी तरह के लोगों में बैठता है, जिस तरह का वो उसकी मेंटालिटी होती है उसी तरह के लोगों में बैठता है। वो मुर्दे को नहीं खाता, कभी भी वो मुर्दों को टच ही नहीं करता। कहता है मैंने अपना खुद शिकार करना है, खुद मैंने खाना है इसको। जो मुर्दा होता है ना, वो पास्ट होता है, गुजर गया। जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको बताना चाहता है, लेसन देना चाहता है कि आप अपने माजी से कुछ नहीं निकाल सकते। माजी के पछतावों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। माजी की जो तलखियां हैं, माजी के जो आपको परेशानियां हैं, माजी की जो मुश्किलात हैं, उनको भूल जाओ। लिव इन द प्रेजेंट, हाजिर में जियो। जब आप हाजिर में जियोगे तो तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या चीज है। सब कुछ जो है वो हाजिर है, सब कुछ जो है हाजिर सांस है। उसको एंजॉय करो, उससे निकालो जो निकाला जा सकता है। पीछे माजी में जाने से कोई फायदा नहीं। फिर उसकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर है वो है फाइंडिंग द मेट, कि जब फीमेल उकाब अपना साथी चुनती है तो वो उसके साथ हवा में उड़ती है। हवा में जब उड़ती है तो वो एक बड़ी सी स्टिक ऊपर से वो फेंकती है। अगर उसने पकड़ लिया उसको तो फिर वो उसको एज ए हस्बैंड या एज ए मेट वो चूज कर लेती है। सो इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि ये चूजिंग द मेट, अपनी साथी की तलाश, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसमें हमें उसकी सब कुछ को, हसब नसब को, उसके घराने को, उसकी मेंटेलिटी को, उसकी आदत को, उसकी एजुकेशन को, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर अपने बच्चों की तरबियत, वो बड़ा ऊपर ऊंचाई के ऊपर वो बनाता है आशियाना। उसका नीचे आशियाना नहीं होता, वो आशियाना पहाड़ों के ऊपर आशियाने बनाता है। पहाड़ों पे आशियाना बनाने का मकसद उसका क्या है कि माई ड्रीम्स आर हाई, मैं पस्त रहना नहीं चाहता, मेरा घर भी ऊंचा, मेरी शान भी ऊंची, मेरी सोच भी ऊंची, मेरे ख्वाब भी ऊंचे। तो आपने ये सब कुछ करना है, ये उससे सीखना है। फिर वो अपने बच्चों की जब परवरिश करता है तो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए वहां पे जो घोंसला बनाता है, उस घोंसले के बाहर जो होता है वो कांटे होते हैं, और जो अंदर होता है वो बड़ा सॉफ्ट किस्म का डेलिकेट होते हैं, घास फूस जिसको बोलते हैं। तो जब बच्चे उसके 9 हफ्ते के हो जाते हैं तो फिर वो उनको आहिस्ता आहिस्ता माँ और बाप जो धकेलते हैं, बाहर धकेलते हैं कि ये अब ये बाहर जाए। जब वो बाहर नहीं जाता ना तो फिर उसकी जो अंदर वाली कंफर्ट, उसकी जो तय है, वो उसको खत्म कर देते हैं। अब उसको कांटे चुभते हैं। जब वो कांटे चुभते हैं ना फिर वो उड़ता है। मकसद ये है कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश करें, उनको सहूलतें जरूर दें, लेकिन इसके साथ साथ उनको हम मसाइब उसकी भी तरबियत दें, मुश्किल जिंदगी की तरबियत भी दें, उनको धूप में भी बिठाएं, उनको छांव में भी बिठाएं। हमें उनको एक्सपोजर देना चाहिए मुश्किल हालात से भी,
कंफर्ट जोन में रख के बच्चे हमारे स्पॉयल हो जाते हैं. सो दिस इज द लेसन अगेन व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दैट. उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि उकाब जीना चाहता है, उकाब मरना नहीं चाहता. He want to live, but he want to live in a living way. जब ये 30 साल का हो जाता है ना, ये अपने आप को बूढ़ा महसूस करना शुरू कर देता है. ये एक पहाड़ के ऊपर जाता है, पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है और फिर अपने सारे जो है ये परों को, जो अपने जो विंग्स हैं उनको खींच देता है, अपनी चोंच को मार मार के उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर उसको खत्म कर देता है. ये बिल्कुल बॉल्ड हो जाता है और इट रिमेन्स देयर फॉर 5 months. 5 महीने तक ये रहता है और उसके बाद इसके पर आते हैं, विंग्स आते हैं, फिर उड़ना शुरू करता है और ये मजीद 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकता है. सो व्हाट इज द लेसन कि हमें जिंदा रहने के लिए वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. हमें अपने आप को तब्दील करना होता है. अगर हमारे में कुछ नकायस आ गए हैं, अगर हमारे में कुछ इस तरह की बातें आ गई हैं हमारे करैक्टर के अंदर, हमारे गुफ्तार के अंदर, हमारे किरदार के अंदर, वी हैव टू चेंज दैट फॉर द बेटरमेंट. और जब आप उसको चेंज कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी, आपका एक नया जन्म होता है, आप नए तरीके से जी सकते हैं. सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ईगल, वी शुड हैव ए वेरी वेरी हाई ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन्स एंड वी शुड बी लॉयल टू आवर मेट्स एंड वी शुड आल्सो ट्राई टू लिव ए लिविंग लाइफ, द लाइफ ऑफ एन ईगल, not the life of the dead persons. And we should not be lazy. We should fight with the speed. We should have a speed. We should have our eyes open and we should concentrate. When we fix our target, we should keep our eyes open and we focus on the target, and then we should hit the target at the right time so that we could not miss the target. And that is the story of today's lecture. With that, I finish it. Thank you very much. Allah Hafiz.